gracious, the merciful. I welcome all participants, all students across the world to my channel, the ESL Academy by Sir Ram. I welcome all. Respected participants, today our topic is sociolinguistic. As you know that linguistic is a scientific study of language. When we study linguist studies language with respect to systematic way, and you could say he studies language scientifically. He study about description of language, how language is described, how language changes, originated, new word crafting, and how new word are crafted, how generated, how describes. All that he study in linguistic, scientific study of language. Now we are going to talk about sociolinguistic. In sociolinguistic, we study language effects in language with respect to society. How society affects language and language changes. In sociolinguistic, which is a branch of linguistics, will study how language changes when social factors are involved in language. For example, culture of people, behavior of people, lifestyle, people style. As you know that every country has people. So country is not without people, and they speak language. Every language have you could say each language has people, community, society, and they are crafting new word, they are developing new word, they are developing language, they are different factors are involved. We'll study in sociolinguistic all. We'll be talking about dialect, accents, Creole, Pidgin language, and the Creole language. So we'll be talking about all these because these are the factor which changes language gradually. So these are involved. Prior to talk about sociolinguistic, it is essential to talk about William Labov. So William Labov, he is a sociolinguist. According to William Labov, he said language, according to William Labov, sociolinguistic is that branch of linguistics which study just those properties of language that require reference to social, including cultural and contextual factors in their explanations. In simple word, if we talk about sociolinguistic, in simple word we can say sociolinguistic aims to study effects of language use within and upon society and communities, and reciprocal effects of social organizations and language use. It means that language change when it interact with other people, when it come across with other people, society. Some people, you know that mostly in British people, they occupied various land. They even occupied India, they occupied subcontinent like in which we have India, Pakistan. They even occupied America as well, and other countries of the world. They occupied various land, and definitely when they occupied, they are the dominant people, and some people on which they have domination. So through this they get some colonial language, which are later known as the Creole and Pidgin. Pidgin is such a language when dominant people, they dominate certain states, and the people who are being dominated, they try to talk with the people they have dominated them, they have conquered them, they have got victory on them, they are the slave, and they need to talk to the people, they are their rulers. This way they produce language Pidgin. It's called Pidgin language, Pidgin. So it's a Pidgin language which people use basic grammar, basic vocab, and in a way to interact with the people of rulers like. And after that, when Pidgin language
जब वो पिजन लैंग्वेज जो उनको ज़रूरत के डेफिनेटली जो डोमिनेंट लोग हैं उनके साथ बात करने के लिए जब वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, वही पिजन लैंग्वेज बेसिक ग्रामर और बेसिक जो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो यूज़ करते हैं। तो अगर वो मेरे से उन लोगों की एक नेटिव लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होने लग जाए तो वो क्या बन जाती है, क्रोल बन जाती है लैंग्वेज। जैसे कि अमेरिकन पीपल ने इनको साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनको स्लेव बनाया और इनको ऑक्यूपाई किया, इनकी लैंड को, उनको वर्कर बनाया। तो डेफिनेटली वो जो स्लेव थे उनको बात करने की अमेरिकन के साथ, रूलर के साथ ज़रूरत थी। इवन कि वो उनको यहाँ से वो अमेरिका ले जाते, वहाँ पे उनसे वर्क लेते, उनको एक साइड पे रखते। तो उनको ज़रूरत थी आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, वेरियस लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, उनको ज़रूरत थी इंटरेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने पिजन एक लैंग्वेज खुद बोल, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड जनरेट होती है। आपने ट्रेड करनी है या तजारत करनी है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिजन लैंग्वेज जनरेट होती है। तो उसके बाद वही लैंग्वेज, क्योंकि अमेरिकन तो उनसे बात नहीं करते थे, अमेरिका तो उनको नज़दीक नहीं आने देते थे, वो गुलाम थे, स्लेव थे, और अमेरिका के अंदर भी उन्होंने एक उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। तो वो उन्हें अपने सोसाइटी में ज़्यादा बाहर भी निकलने देते थे, तो वो आपस में ही बात करते रहे। तो इतनी उन्होंने आपस में इंट्रैक्शन की, तो आज भी वो लैंग्वेज किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। वो लेटर एज अ क्रोल यूज़ होने लगी। पहले पिजन होती है लैंग्वेज कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जनरेट होती है। अगर वो लोगों की से एक फॉर्मल लैंग्वेज बन जाए या दूसरे लफ्ज़ों में एक नेटिव लैंग्वेज के तौर पर यूज़ होने लग जाए, बेसिक मदर लैंग्वेज तो है, उसके साथ ये भी यूज़ करें तो उसे एज अ क्रोल कहते हैं। तो इस तरह डायलेक्ट definitely it is also part of sociolinguistic, and we study in sociolinguistic what is dialect and what is dialectology. It is also you could say a part of sociolinguistic in which we study the regional language, like Punjabi language। जैसे कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज है, ये रीजन टू रीजन चेंज होती है। यहाँ पे डायलेक्ट जो हमारा स्टैंडर्ड एक्सेंट है वो लाहौर में बोला जाता है, जो ऑफिशियल पंजाबी का एक्सेंट लाहौर में बोला जाता है। लाहौर से आप इधर उधर जैसे ट्रैवल करते जाएँ तो चंद किलोमीटर के फासले पे आप देखते जाएंगे लैंग्वेज चेंज होती जाएगी। इवन के हमारे रीजन में आ जाएँ, उकाड़ा साहिवाल में या डिफरेंट और रीजन में मुल्तान में दूसरा की लैंग्वेज और डिफरेंट पंजाबी की फॉर्म आपको डिफरेंट शक्ल में मिलेगी। इस तरह उर्दू लैंग्वेज है तो उसमें भी कुछ चेंजेस के साथ आपको मिलेगी। तो जो रीजन टू रीजन लैंग्वेज होती है वो उसका डायलेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो लंदन के अंदर जो इसके स्टैंडर्ड स्कूल हैं जो IPA को फॉलो करते हैं या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट को फॉलो करते हैं, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, उसे कहते हैं एक्सेंट। गुड एक्सेंट विच इज स्पोकन इन लंदन and standard schools, your model school of London and Oxford and like these university, they follow IPA style of phonetic system. They follow, and after that they received pronunciation. They received pronunciation का मतलब है कि किस सोर्स से आपने pronunciation received किया है, तो उस RP को फॉलो करते हैं या IPA को फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेंट। एक्सेंट के अलावा इंग्लैंड के जो डिफरेंट एरिया में रीजन टू रीजन बोली जाती है इंग्लिश, उसकी आपको और मुझे समझ नहीं आएगी। वो बहुत सारे लोगों को वो सिमुलेशन करते हैं जैसे, तो उसमें मेरे से बहुत एलिजन यूज़ करते हैं, स्किप करते हैं बहुत सारे वर्ड, आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं लेट मी स्टडी, तो वो लेम मी, सो इट मीन दैट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ बहुत, जैसे गोइंग टू, गोना, काइंडा, गोटा। तो इस तरह की कुछ वो स्लैंग वगैरह भी यूज़ करते हैं, वो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मीन टू से रीजन टू रीजन कुछ कल्चर और उनके जो स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल के लिहाज से जो लैंग्वेज को उन्होंने जनरेट किया हुआ है या उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए बनाया हुआ है, वो उनके डायलेक्ट्स हैं। वो उनके मीन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज में आ जाती है। डिग्लोसिया भी ऐसे ही एक मीन से लैंग्वेज है जो जनरेट की है, जो लोग रीजन टू रीजन बोलते हैं। रजिस्टर है, डिग्लोसिया है, उसके अलावा हमारे पास कुछ ESP है, जैसे इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस है, लॉयर की लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, मेडिकल की लैंग्वेज है, लिटरेरी पीपल्स की लैंग्वेज है, स्टडी पर्पस के लिए, जर्नल पर्पस के लिए लैंग्वेज है, ESP, EGP। तो इस तरह वेरियस फील्ड जो हैं हम उसको सोशियो लिंग्विस्टिक में देखते हैं, उसके लैंग्वेज की चेंजेस को, सोसाइटी का अफेक्ट जो है लैंग्वेज में वो देखते हैं। क्योंकि सोशियो जैसे कि सोसाइटी है, लिंग्विस्टिक
ऐसा लिंग्विस्टिक यानी ऐसा साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम सोसाइटी के अफेक्ट को देखते हैं कि सोसाइटी हमारी लैंग्वेज को कैसे अफेक्ट कर रही है। उसमें डायलेक्ट आ रहा है, उसमें ECP आ रहा है, उसमें EGP आ रहा है, उसमें आपका डिग्लोसिया आ रहा है, क्रोल आ रहा है, पिजन आ रही है, उसमें डायलेक्ट आ रहा है, डायलेक्टोलॉजी आ रहा है, उसकी स्टडी आइडोलिक्स आ रहा है। तो ये सारी स्टडी हम सोशियो लिंग्विस्टिक में करते हैं। इसको हम डेफिनेटली उसकी प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज को। और एक और स्टडी है, उसमें आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इन विच वी स्टडी लैंग्वेज दैट अफेक्ट सोसाइटी। सोशियोलॉजी यानी हम देखते हैं सोशियोलॉजी में हम लैंग्वेज को देखते तो हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि सोसाइटी पे क्या अफेक्ट हो रहा है लैंग्वेज का। देखिए ना, जब कोई पीपल किसी को डोमिनेट करते हैं तो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है सोशियोलॉजी, जब इस सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि लैंग्वेज सोसाइटी को अफेक्ट क्यों कर रही है, किस तरह कर रही है, कौन कौन से प्रोज कौन कौन से इन्स एंड आउट हैं। लेकिन जब सोशियो लिंग्विस्टिक में देखते हैं तो हम लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज को सोसाइटी कैसे अफेक्ट कर रही है, कल्चर, उनका रहन सहन, उनका तरीक़ेकार, उनका स्टाइल, उनका लाइफ, उनके से डेवलपमेंट, उनके पीपल की डेवलपमेंट, उनके कल्चर की, उनकी सिविलाइजेशन की, और वो सारे फैक्टर्स जो लैंग्वेज को अफेक्ट कर रहे हैं हम उनको स्टडी करेंगे। उससे कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक। दिस व्हाट डिफरेंट बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशियो लिंग्विस्टिक। तो आई होप you have understood to some extent about sociolinguistic, and now we've got one of assignment I've just shared with you. So kindly come to assignments now. We'll be studying and we'll be learning something different related to sociolinguistic. So come to the first point, sociolinguistic, the study of language and society. Sociolinguistic, we study language and society. Sociolinguistic is a descriptive study, क्योंकि लैंग्वेज की जो लिंग्विस्ट है उसकी स्टडी है डिस्क्राइब करना लैंग्वेज को। लिंग्विस्ट स्टडी को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्टिव है। सोशियोलिंग्विस्टिक इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी एंड अदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मैंने पहले बात की, इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन द वे लैंग्वेज इज यूज्ड एंड सोसाइटी अफेक्ट ऑन लैंग्वेज, कि सोसाइटी कैसे अफेक्ट कर रही है लैंग्वेज को। वो फैक्टर हम देखेंगे कि सोसाइटी हमारी लैंग्वेज को कैसे अफेक्ट कर रही है। सोशियोलिंग्विस्टिक तो रिलेटेड ही इससे है। सोशियोलॉजी में हम देख सकते हैं कि जी सोशियोलॉजी लैंग्वेज अफेक्ट कैसे कर रही है, लैंग्वेज ऐसे अफेक्ट करती है। उसमें मिनट से आप ब्रिटिश को देख लें या अदर डोमिनेंट नेशन को देख लें, उन्होंने अफेक्ट किया है। वो हमारे इधर पोस्ट कॉलोनियल जैसे लिटरेचर है, या जो उन्होंने कॉलोनीज क्रिएट की हुई थी हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में देख लें, उन्होंने हमें अफेक्ट किया है। आज भी हम लोग इंग्लिश से मुतासर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे ऊपर अफेक्ट करती है। हमारे वोकल कार्ड उसको एम्ब्रेस करते हैं, जल्दी से बोल लेते हैं, हम फ्लुएंट स्पीकर बन जाते हैं, जितने भी स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। अगर आप देखें अरबिक कंट्रीज़ को, तो वो अभी तक भी अच्छी तरह लैंग्वेज, क्योंकि उन पर इतनी हुकूमत नहीं की इन लोगों ने। It differs from sociology of language, which focuses on the effect of language on society. What is difference between sociolinguistics and sociology of the language? जैसे कि मैंने पहले बात की कि सोशियोलिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज फैक्टर को स्टडी करेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज जो है उसमें हम ये फैक्टर स्टडी करेंगे कि सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है लैंग्वेज। So sociology of language is a study of the relationship between language of society, language and society. It closely related to the field of sociolinguistics, which focus on the effect of society on language. For the former, society is the object of study. Object of the study. For the former, society is object of study. यानी जो पहले वाली है, कहता जो पिछली है, जो पहले जिसकी बात की, उसमें क्या सोसाइटी है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। Whereas for the later, जो बाद में हमने जिसकी बात की है, उसमें क्या, जैसे सोशियोलिंग्विस्टिक है, तो सोशियोलिंग्विस्टिक में हम सिर्फ क्या स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी हमारी क्या होगी, लैंग्वेज होगी। फोकस हमारा सेंटर पॉइंट लैंग्वेज होगा। What does the field of the sociolinguistic study? Sociolinguistic is the study of relationship between language and society. Sociolinguistic are interested, sociolinguists are interested, जो लिंग्विस्ट है वो एक साइंटिस्ट है, लैंग्वेज का साइंटिस्ट है, तो वो क्या स्टडी करता है, in how we speak differently in varying social contexts, and how we may use specific functions of language.
लैंग्वेज का जो फंक्शन है, जैसे कभी वो डायलेक्ट बन जाता है, कभी एक्सेंट बन जाता है, कभी पिजन बन जाता है, कभी खरोल बन जाता है, कभी डायलेक्टल आइडोलिक्स बन जाते हैं, तो कभी वो डिग्लोसिया बन जाता है। तो वो सारी लैंग्वेज के जो फैक्टर हैं जो सोसाइटी के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, या डेवलपमेंट हो रही है लैंग्वेज के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के, कल्चर के हवाले से, सिविलाइजेशन के हवाले से, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज सोशियो लिंग्विस्टिक? कहता है कंसर्न with the things that very most link classes you will take are concerned with the things that don't vary about language. All level of language can show variation, sound, words, meaning, grammars. जितनी भी लैंग्वेज है उनके अंदर कहता है वेरिएशन होती है, जैसे साउंड के लिहाज से, वर्ड के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से। कुछ लैंग्वेज हैं वो स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज हैं, कुछ लैंग्वेज हैं वो मीन्स से वैसे ही रिदमिक लैंग्वेज हैं, कुछ लैंग्वेज में से टोन इंटोनेशन से इतना चेंज आ जाता है कि वो मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर आप इंटोनेशन को चेंज करेंगे, डू यू नो इंग्लिश, हम कहते हैं तो मैं कहूँ डू यू नो इंग्लिश, इट मीन दैट देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। सेंटेंस सेम है, इंटोनेशन के चेंज करने से मुकम्मल चेंज हो गया मीनिंग। तो वेरिएशन कैन बी सीन एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप और इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज वेरी फ्रॉम द individuals or the groups. So an individual use of language vary from place to place, audience to audience, or the group of the speakers shows language difference when compared to other group of the speaker. अब देखिए जो लैंग्वेज है ना वो ग्रुप टू ग्रुप डिफरेंट है। जो हमारा पंजाबी का स्टाइल है जो हम बोलते हैं वो मिनट से अगर आप जो इंडिया का पंजाब है उसमें देखें तो वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो कुछ और तरीके से बोलते हैं। इंडिया के जो पंजाब के सिख हमारे तो हम थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं। तो फिर ग्रुप टू ग्रुप, प्लेस टू प्लेस, ऑडियंस टू ऑडियंस ये वेरीड करता है और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड रखता है, डिफरेंट इनका एक स्टैंडर्ड है। कहता है एवरी वन स्पीक्स अ डायलेक्ट, योर एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, सोशल क्लास और उसके बाद जियोग्राफिक बैकग्राउंड, ये चीजें अफेक्ट करती हैं। वो कह रहा है जी जो हर स्पीकर एक डायलेक्ट है उसका, वो एज के लिहाज से उसका एक लहदा, रेस के लिहाज से, उसकी ज़ात के लिहाज से, सोशल क्लास के लिहाज से, जियोग्राफिक बैकग्राउंड के लिहाज से। और देखें उतना ही अच्छा स्टैंडर्ड हम लैंग्वेज का सीख पाते हैं जितना हमने रिफाइंड स्कूल या अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा हो। अगर हमने स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ा है, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा है इंग्लिश में, तो हमारा उसका एक्सेंट अच्छा होगा, अदरवाइज हमारा एक्सेंट भी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह के हमारे टीचर्स होते हैं वैसा हमारा एक्सेंट बन जाता है। It mean it varied according to the gender to gender, place to place, background to background. It all affects our way of speaking. Sometimes we are speaking in standard language, standard accent. We sometimes use dialect, and dialect are varied from region to region, place to place, from the you could say standard to standard, background to background. Sound often couples data, lexicons. Sneakers, gym, shoes, tennis shoes, firefly, lightning, bug, meaning, barbecue, and grammar positive anymore. The weather's so hot anymore. Background or sociolinguistics. These are the words we use in different. वो कह रहा है कि हम different sense में या different style में कहते हैं ये use करते हैं. Known as dialectology. Dialectology related to dialect. Study of the dialect, how dialect are changed from region to region, place to place, country to country, people to people, and background to background. तो ये है dialectology का knowledge stem from the study of regional dialect. वही चीज़ जो मैंने अभी बात की कि region to region. Response to the current concerns of theoretical linguistics. Saussure's Lang और Perol जो डी सॉशर ने एक कंसेप्ट दिया था जिसमें उसने कहा था कि हर वर्ड्स का एक मीनिंग है और उसका एक सिग्निफाइड मीनिंग है और एक सिग्निफायर, कि हर चीज़ का एक मीनिंग है, उसके साथ एक इमेज रिलेट है। डॉग है तो उसके साथ एक इमेज है, उस इमेज के साथ हम डॉग को पहचानते हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे लैपटॉप है, आपके सामने लैपटॉप पड़ा है या आपके सामने मोबाइल है, तो मोबाइल क्यों मोबाइल है, इसका कंसेप्ट दिया था फर्डिनेंड डी सॉशर ने। उसने कहा था हर ऑब्जेक्ट के साथ एक मीनिंग के साथ एक इमेज अटैच है। इमेज नहीं है तो आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। बुक है तो बुक का एक इमेज मेरे माइंड में एक सिग्निफायर है और एक सिग्निफाइड मीनिंग है। तो ये किसने कंसेप्ट दिया था? फर्डिनेंड डी सॉशर ने।
जो स्विस जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने। द यूज ऑफ लैंग्वेज हेट्रोजीनियस, चॉम्स्की कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये सारे लोग हैं जो इसमें इन्होंने हिस्सा लिया और इसमें वर्क किया। लिंग्विस्टिक थ्योरी कंसर्न विद द आइडियल स्पीकर लिसनर्स इन कंप्लीटली heterogeneous, homogeneous speech community and idealization to allow analysis to take place. But when what to do with the variations? Just random, free variation. Variation जो लैंग्वेज के अंदर है उसकी स्टडी को हम सोशियोलिंग्विस्टिक कहते हैं जी। Where does the variation really come from? What purpose does it serve? आगे है जी कुछ फैक्टर्स हैं लिंग्विस्टिक के, वो हम देखते हैं। कहता है लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फॉर मैनी रीजंस, नो लैंग्वेज एवर स्टैग्नेंट, कि लैंग्वेज कभी भी स्टैग्नेंट नहीं है, कभी खड़ी नहीं है एक जगह पे, इसमें डेवलपमेंट होता है। इंग्लिश ने जो आया उसने अपने अंदर ले लिया, जो मीनिंग आया उसने अपने अंदर इसको ले लिया और उसको ऑब्सॉर्ब कर लिया। इंग्लिश एक वाहिद लैंग्वेज है कि जिसने रोमन, ग्रीक्स, लैटिन्स, इवन के फ्रेंच, जर्मन, किसी लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं छोड़े, अपने अंदर ऑब्सॉर्ब कर लिए। उर्दू लैंग्वेज के, पंजाबी के भी अंदर, जैसे एक फटीक लैंग्वेज है, फटीक एक वर्ड है, फटीक इज अ पंजाबी वर्ड, बट दे हैव कॉमोडेटेड इन देयर लैंग्वेज, इट इज अ फटीक मीन परेशानी। तो ये इंग्लिश वाहिद लैंग्वेज है जिसने अपने अंदर इसको अब्सॉर्ब कर लिया डिफरेंट लैंग्वेज को। कहता है बट लेट 1960 अर्बन पॉपुलेशन ग्रोइंग एंड देयर वाज एन इंक्रीजिंग नीड टू डिस्क्राइब एनालाइज स्पीच ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन फुल्ली एंड एक्यूरेटली, लैक ऑफ द होमोजेनिटी इन अर्बन एनवायरनमेंट, अनलाइक एरिया टिपिकली इंटरेस्टेड टू dialectology, that this lack of homogeneity led many claim it free variations, randoms, no pattern, but some starting with the William Labov, फिर उसका नाम आ गया जो मैंने ग्रेट एक लिंग्विस्ट का नाम डेफिनेशन अब दी पहले मैंने। आर्ग्यूड दैट दिस वेरिएशन डिस्प्लेड ऑर्डर्ड heterogeneity instead of random chaos. Labov set out to study this variation systematically. What is behind variation? Some important concept notion of the speech community of the people in which rule for the conduct interpretations of the least and linguist variation, language, dialect, shared norms of language use can city neighbor regions, shared communicative competence, what speaker needs to know communicate effectively. अच्छा जी, नीचे जरा आए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। कहता है सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएबल, लिंग्विस्टिक फीचर्स which correlate with some non-linguistic independent variable of social context of the speaker, addressees, audience, settings, etc. So social variable like age, gender, race, style, social characteristic are the independent variables. So the goal of the urban social dialectology, sociolinguistic become the correlation of the social and linguistic trait. कहता है ये चीजें जो है ना, एज, रेस, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद स्टैंड करती हैं, खुद हैं, इनके लिहाज से चीज़ें चेंज होती है, ये वैसे रहते हैं। लैंग्वेज इनके लिहाज से चेंज होती रहती है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ब्रांचेस ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली, नैरोली। ब्रॉड ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज विच रिक्वायर रेफरेंस टू सोशल इंक्लूडिंग कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इन देयर एक्सप्लेनेशंस। ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी हैं, वही चीज़ें। तो if we talk about the main agenda in sociolinguistics, it affects society, host society and cultures, norm, race, age, region, people, society, and land, people, dweller of the lands, inhabitants of the land, affects language, and language is subdivided into various dialect, pidgins, carols, and you accent. So when language is divided into various, you could say accent, dialect, and then we have carol, pidgins, diglossia, and other factors related to language with respect to race, region, area, people, all that, it creates socio-linguistic. It comes under the you could say it comes under sociolinguistic. It becomes part of sociolinguistic and we study in our sociolinguistic subject. I hope you have understood this lecture and you have learned a lot
especially in this lecture sociolinguistic, in which we have described definition of sociolinguistic. We have studied the aspect which are involved to produce the study of sociolinguistic, and the factor which are involved to have sociolinguistic knowledge. Like we have studied dialect, we have studied diglossia, we have studied Creole, Pidgins, and accent as well. What is standard accent? We have studied about RP, received pronunciation. We have talked about IPA, International Phonetic Alphabet. So these are involved in our socio-linguistic subject. I hope you will like, and you will really get a lot of knowledge out from our lecture. Stay blessed and have a nice time.